resume writing में usually what we understand that at least 3 pages होने चाहिए because initially when we are fresh या when we are starting our careers वहाँ पे 1 पेज 2 पेज का करते हैं, but then as gradually as the experiences are gained in our careers तो usually होता है कि resumes लंबे होने लगते हैं. We think that we need to mention each and every experience of ours, right? But that is not the case. An ideal resume should be of a single page. Now इस ये जो एक PPT है, ये एक सेशन है, इसमें एक पर्टिकुलर रेज्यूमे का ब्रेकडाउन है स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट रेज्यूमे वाज सेलेक्टेड इन Amazon, Microsoft एंड Google. तो वो एक एग्जांपल लेके हम इसको करेंगे, एंड दैट वाज अ सिंगल पेज फॉर्मेट, सिंगल पेज रेज्यूमे फॉर्मेट, राइट? आइडियल वर्ड्स लिमिट 475 600 वर्ड, वही जो हम 2 पेजेस में यूज करते, 2 पेजेस में लिखते हैं, उसको हम और क्रिस्प करके और अच्छे से करके 1 पेज में ही हमें खत्म करना है. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, XYZ फॉर्मूला जो हम अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में मेंशन करने के लिए यूज करेंगे. सो X इज अकम्प्लिश्ड व्हाट, Y उसको मेजर किस तरह से कर रहे हैं, एंड उसको हमने किया किस तरह से. उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी था, रिड्यूस कॉस्ट बाय 10% बाय लीडिंग अ मेजर कॉस्ट रैशनलाइजेशन प्रोग्राम. सो हमारे जितना भी एक्सपीरियंस का पार्ट है, व्हाटएवर एक्सपीरियंस वी आर मेंशनिंग इन आवर रेज्यूमे, हम उस एक्सपीरियंस को इस तरह से XYZ फॉर्मूला को मेंशन कर सकते हैं, राइट? एक रेज्यूमे का हम सैंपल लेके चल रहे हैं. सो दिस इज द रेज्यूमे सैंपल एंड इसको कलर कोड किया गया है फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ द पिंक इज द एक्शन वर्ड्स. So it's very important to start each and every bullet points of our resume with the action word. Instead of mentioning कि हम team work कर रहे हैं, या I'm good in teamwork, I'm good in organizational skills, या I have good creative skills, उसकी जगह we should use action verbs like led, we led a certain project, or we led a team of 50 people, I built from scratch the entire department, something of that kind. So always start resume with an action. That is very important. Certain जो बड़े brands हैं, like जब हम Google और Microsoft इन सब की बात करें, they have their own application tracking system, ATS system is there. So they have वो AI से उनका पूरा resume screen होता है. It's not that the recruiters are sitting there opening each and every resume and screening and doing everything. So when AI ये जो automated scanning होती है resumes की, उसमें इस तरह की चीजें ना, सिंपल टीम वर्क लिखा है, सिंपल वर्ड्स लिखे, सिंपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आपने मेंशन किए, they get filtered out. These kind of resume doesn't get selected. So this is the kind of thing, अगर हम action verbs ज़्यादा use करते हैं, this kind of thing to make sure that our resume does get selected, at least we land up for the interview, right? अगर हम इसमें देखते हैं, the pink one जो हमने action verbs की example दिया था, we can see led the design and development of multiple projects, right? Designed and implemented, led, enriched steps. Every bullet point is starting with an action verbs. That is important, right? Now next, job oriented hard skills. So we need to mention the softwares and technologies and skills, whatever platforms you are working on, we need to mention that. And it gradually happens. Initially career में शायद इतना नहीं होता है freshers, लेकिन धीरे-धीरे जैसे as you gain your experience, you work on a lot of tools, a lot of platforms. So वो आप mention करते हैं, that is very important. And the main thing is you have to customize your resume as per the requirement, whatever the requirement is there. अगर हम if I am applying for an HR manager role in operations, तो मैं उसके हिसाब से टूल्स मेंशन करूँगा या प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ किए हैं. Like for operation, great HR is a platform that I should mention. For recruitment, I'll mention Naukri.com. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक छोटी सी टिप है कि whatever target company, जो भी आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के 3 JDs निकाल के आप चेक करिए, या 2-3 कंपनीज के टारगेट कंपनी आप बनाइए, 3 JDs आप स्टडी करो, उसमें जो इंपॉर्टेंट टूल्स या स्किल्स मेंशन है, बिल्ड योर ओन एक डेटाबेस बना लीजिए कि ये स्किल्स मेरी इंडस्ट्री में या मेरी प्रोफाइल में, these particular skills are in the market, right? These are the skills that are being asked by top companies. So build your own database of that, and when you shortlist from there, and then mention that in your resume. So this is a small tip.
And that will change as per the job that you are applying for. Domain knowledge and hands-on experience. So this is, अगर हम ऑरेंज वाले सेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें एक्चुअली में क्या काम किया है. 60% अगर देखा जाए, मैक्सिमम जो परसेंटेज अगर रेज्यूमे सेलेक्ट होते हैं, रिक्रूटर्स या इंटरव्यूअर सेलेक्ट करते हैं रेज्यूमे, दैट इज कि आपने अपने पूरे रेज्यूमे में एग्जैक्टली डोमेन नॉलेज कितना मेंशन किया है, प्लस जो आप नॉलेज आपने गेन किया उसको अपने एक्सपीरियंस में, अपने डे टू डे एक्सपीरियंस में कैसे यूज कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके एग्जांपल्स भी हैं इसमें. आइडेंटिफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटर, यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, मतलब जो एक्चुअली में आपने नॉलेज गेन करी है, जो आपकी स्टडीज है, वो आप कैसे अपने रेज्यूमे में यूज कर रहे हैं. एंड दैट इज यूज्ड एक्चुअली यूज्ड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, राइट. Optimization experiments, marketing experiments, user experience testing, designing and developing fintech transaction. So these are जो domain knowledge, main domain knowledge and the experience indicators. Next is, this is the most important part, quantifiable results. Everybody knows that resume में आपके achievements quantify करने बहुत जरूरी है. Numbers and percentages के बिना resume इनकम्प्लीट है. आपके अचीवमेंट, आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि नहीं आई स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट या आई फिनिश्ड अ प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट से किस तरह का आपने रेवेन्यू जनरेट किया या क्या चेंज आया, उसको अगर आप नंबर्स में या परसेंटेजेस में दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, राइट. एग्जाम्पल्स हैं, ड्राइविंग $35 billion रेवेन्यू एवरी ईयर, इंक्रीजिंग ग्लोबल रेवेन्यू बाय 23% इन द फर्स्ट क्वार्टर. Serves millions of licenses requests daily. So something related to numbers or percentages should be there, especially in the achievement section. Impact statement. ये basically experience mention करने के लिए. अभी हमने XYZ भी starting में देखा था, XYZ कि आप क्या achieve कर रहे हो, कैसे उसको measure कर रहे हो, उसका result क्या है. कुछ उसी से similar होता है PAR method. दैट इज, एक प्रोजेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपने एक्शन क्या लिया और उसका रिजल्ट क्या आया. अगर हम अपने सारे एक्सपीरियंस को इस तरह से एक सेंटेंस फॉर्म करके लिखेंगे, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं एंड वी गिव देम ट्रेनिंग ऑन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी. सिंपल प्रोसेस. उसको लिखने का तरीका, ट्रेन एंड सुपरवाइज. सो दिस इज द एक्शन पार्ट. किसको, प्रोजेक्ट है हमारा, न्यू एंड इनकमिंग स्टाफ, और उससे रिजल्ट क्या आ रहा है. टू एंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस एंड एडहेरेंस टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन द टाइम. सो ये PAR मेथड फॉलो करना और XYZ मेथड फॉलो करना, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एक्सपीरियंस मेंशन करने में अपना ध्यान रखना है. सोशल मीडिया और पोर्टफोलियो लिंक्स, ये भी ग्रेजुअली जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अगर आप फ्रेशर है, स्पेशली से डिजाइनिंग वाले, हम लोग भी ग्राफिक डिजाइनर्स जब हम देखते हैं, वी स्पेसिफिकली आस्क देम फॉर देयर पोर्टफोलियोज. तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है जो हम यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियोज के. इट्स नॉट जस्ट कि जो IT डिपार्टमेंट है वही उसका पोर्टफोलियो हो सकता है, या तो ग्राफिक डिजाइनर का ही हो सकता है. इवन वी कैन हैव आवर ओन पोर्टफोलियोज, जिसको हम लिंक्डइन से या इंस्टाग्राम से अपना खुद का ब्रांड प्रमोशन अगर करते हैं उसको भी शो कर सकते हैं, एंड दैट विल आल्सो हेल्प. This is an important part. Usually, what we do, we mention soft skills. Everybody mentions soft skills in the resume. और हम soft skills के अलग section बनाते हैं कि detailed oriented, ability to perform in a team, ability to perform in a pressure environment. ऐसे हम अलग से soft skills mention करते हैं. उससे much better है अगर हम अपने daily experience, जो हमारा work experience है, उसमें हम उन soft skills को include करके उसमें mention करें. ठीक है, जैसे कि इसमें एक छोटा सा example, इसी resume में छोटा सा example है. Coding bootcamp mentor responsible for mentoring and giving career advice. So ये भी एक तरह की सॉफ्ट स्किल है, बट उसने अलग से सॉफ्ट स्किल्स करके नहीं लिखा है. उसने अपना मेंटरशिप, अपना एक अचीवमेंट या अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बताते हुए अपनी सॉफ्ट स्किल मेंशन कर दी.
दिस इज काइंड ऑफ थिंग जो हम सॉफ्ट स्किल के लिए यूज कर सकते हैं. यूजुअली हमारे रेज्यूमे बड़े ही इसलिए होते हैं क्योंकि हम अलग अलग सेक्शंस यूज करते हैं. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द लास्ट पार्ट एक्चुअली. एजुकेशन जो हम मेंशन करते हैं एंड रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, एक्सपीरियंस में भी. सभी को पता है जो रीसेंट है वो हम पहले मेंशन करेंगे, बाद में है. एंड इसमें मेन है कि आप आपके मार्क्स अगर 70-80% अबव हैं तो ही मेंशन करें, नहीं तो इट्स नॉट नेसेसरी टू मेंशन द मार्क्स. यू कैन जस्ट मेंशन योर डिग्री. इवन समटाइम्स पीपल जस्ट मेंशन द हाईएस्ट डिग्री. दैट इज आल्सो फाइन. वो डिपेंड करता है कि क्या रेलेवेंसी है आपके. अगर दैट इज आल्सो वही एक पार्ट आ जाता है कि यू हैव टू कस्टमाइज योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. आपके जेडी में इफ इट इज मेंशन that we need a bachelor's in this and master's in this, then you should mention bachelor's. आपने उससे bachelor अगर आपने किया तो जरूर mention कीजिए. mentioning का post graduate can be enough. और अगर आप mention करते भी तो reverse chronological उसमें plus other कुछ है awards, relevant coursework वही है. अगर आपका zero experience उस particular field में zero experience है तो आपने कुछ coursework कुछ courses करें, there might be certain certifications that you can mention. And PORs कहते हैं कि this is important when the campus placement is going on. This position of responsibilities. When students join some kind of a club or committee या कोई boot camp organize करते हैं, तो वहाँ पे एक होता है कि they are doing something extra. Because अभी उनका experience नहीं हुआ, we cannot judge them on their experience. We are judging them on their actual knowledge, soft skills, and these are some of the extra things that they do. So that helps in campus placement and जो freshers jobs होती हैं उसके. So this is all from my side. एक छोटा सा एक सेशन था and this session, this link, there was a link, LinkedIn की एक link थी जो प्रदर्शन ने share करी थी. I found it very useful for me. There are certain things that I use, but कुछ हैं ऐसी चीजें जो मैंने नहीं use करी थी. मुझे important लगा, मुझे अच्छा लगा. Even sir wanted कि ये एक session at least हमारे managers and TLs तक पहुँचे. Because एक skill building is very important for each and every employee and we will try कि इस तरह के sessions होते रहे. And एक आपसे from all of you, because हम आप manager TL सब यहाँ पर हैं, we invite your suggestions on the topics that we can use for these kind of sessions. Alright, any questions? So I just have one query. So what we do normally when we what I personally do, so whenever I want to emphasize on something, so if it is a resume, so if I want to emphasize on some particular skill, so we tend to mention in a different way, अलग से separate section बनाते हैं ताकि उस पे वो नजर जाए. So the CV that you showed here, उसमें बहुत ऐसे lines में सारे लिखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा difference में निकलेगा normally जो. मतलब you are saying कि the CV should look good, is it? It should look good. Also look good, I don't know, ये CV बहुत word वाला लग रहा था. हाँ, ये बिल्कुल simple. There was no design. It was very simple. But that is why we are sharing it with you. इतना simple CV भी Google, Microsoft इतने brands में select हो सकता है, तीनों में select हुआ है. आप मैं LinkedIn की आपसे link share करूँगा. You should go and read it. मैं ये PPT LinkedIn की link and this resume जो है sample I share this with you. It's your personal choice. You can make your resume. It can look good and it can also be informative. ये भी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. It's your creativity. But these are certain points. इसी तरह से आप जो आपका बैकग्राउंड है या आपका अलाइनमेंट है, आप उसको अच्छे से यूज करो, अलग से मेंशन करो. बट देन यूज XYZ मेथड या PAR मेथड, आप वो भी यूज करके बोल सकते हैं. क्वांटिफाइबल आप टेक्निक्स यूज कर, क्वांटिफाइबल जो अचीवमेंट्स आपके हैं उसको क्वांटिफाई करके आप वो यूज करो, वो भी कर सकते हैं. एंड ऑनेस्टली बिकॉज वी डू डेली रिक्रूटमेंट, इतने रेज्यूमेज आते हैं. दिस इज माय पर्सनल सजेशन. रेज्यूमे लंबा करना, बहुत सारे सीनियर्स आते हैं 10-10, 20-20 साल के एक्सपीरियंस है तो उन्हें लगता है सब मेंशन करना जरूरी है. 6-6, 7-7 पेजेस के रेज्यूमेज आते हैं. वी डोंट हैव टाइम टू रीड एवरी सिंगल पेज और एवरी सिंगल एक्सपीरियंस. जो कि मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंसेस है, दोज आर इंपॉर्टेंट. प्लस कस्टमाइज योर रेज्यूमे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. आपको पता है कि ये ऐसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो दीज पीपल आर लुकिंग फॉर दीज पर्टिकुलर स्किल्स, दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. आप उसे हाईलाइट करो, बाकी को कम कर दो. It's not necessary to mention, if I have worked in 7 companies, it's not necessary to mention all the points, all the roles and responsibilities of those 7 companies. It's not important. So basically it is somewhere related to where you are applying. Yes, that is the customize your resume every time.
9 years इतना प्रोजेक्ट क्या he is a software developer. देखिए this person is a software developer and इनका experience अगर आप देखो 9 years का experience है. He has mentioned everything in this single page. इसीलिए ये सेशन हो रहा है. Actually ये मतलब it's not that मैं भी कहता कि अगर ये है तो we can do this in 2 pages, at least 2 pages. Even my resume is of 2 pages right now. But the point is कि उसको भी कम किया जा सकता है. If this person can do it, we can do it because this person knows कि क्या